My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 + 1 + 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 + 1 + 1 equals 1. I want the world to know about my God. I wanna live so the whole world can see that my heart has changed, I'm forgiven and new. If people need proof, may they see it in me. Let's look the world in the eye. Let's look them in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज इस तीसरे दिन के वेकेशन बाइबल स्कूल में आपने हमें एक बार फिर से मिलाया। इस ऑनलाइन संगति सहभागिता में जो कि मसीह मंदिर चर्च सीनाई इंदौर के द्वारा से आयोजित की जाती है, सारे बच्चों के लिए जो कि संडे स्कूल में हमारे नियमित रूप से आते हैं, इस सुविधा के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्यारे बच्चों, हमने तीसरे दिन आज इस संगति सहभागिता में प्रवेश किया है और एक बार फिर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक उत्तम आत्मिक अनुभव आप सभी को इस संगति सहभागिता से प्राप्त होगा। पिछले 2 दिनों की आशीषों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से और क्राफ्ट के माध्यम से आपने अपने अनुभव को, अपनी कलाकृतियों को हमारे सामने रखा और मैं सारे बच्चों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं उनके परिश्रम के लिए जो उन्होंने इन कॉम्पिटिशन्स में प्रकट किया। आइए बच्चों,
हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा से इस वेकेशन बाइबल स्कूल के तीसरे दिन की उस संगति में आगे बढ़ते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन को दिखाने के लिए, इस तीसरे दिन में वेकेशन बाइबल स्कूल के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रवेश कराया और पिता परमेश्वर हमें आशीषित किया। विशेष रूप से इन बच्चों के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं जो बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ इस संगति सहभागिता में अपनी कलाओं को दिखा रहे हैं, अपने आत्मिकता को प्रकट कर रहे हैं, स्तुति महिमा कर रहे हैं और उस अद्भुत वचन को, उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस तीसरे दिन की कार्यवाही को आप आशीषित कीजिए और इन बच्चों को प्यारे पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे में निरंतर बना के रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. प्यारे बच्चों, आज जो एक्टिविटीज़ हम आज इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनका मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं, उन्हें आपको बताना चाहता हूं। आज की जो एक्टिविटीज़ हैं वो है फैंसी ड्रेस कंपटीशन और क्विज कंपटीशन। जी हाँ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो है वो बिगनर कक्षा के बच्चों के लिए है और क्विज कंपटीशन जो है वो जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर कक्षाओं के लिए रहेगा। और इनके जो विषय होंगे वो केवल और केवल बाइबल से ही संबंधित रखे। प्यारे बच्चों, बिब्लिकल सब्जेक्ट्स पे ही आप अपने बच्चों को फैंसी ड्रेस के लिए तैयार करें। आइए बच्चों, आज के इस दिन में हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने आज अपनी प्रस्तुतियां हमें प्रेषित की है वे इस प्रकार से है। शैलराज राम, जो कि बिगनर कक्षा के बच्चे हैं, वह एक ओरेशन के द्वारा से उसकी महिमा करेंगे। सामर्थ राम एक सुंदर गीत के द्वारा से इस प्रस्तुति को देंगे। और जोशुआ एंड जोआना सेल, जी हाँ, एक डुएट गीत उसकी स्तुति महिमा का प्रेजेंट करेंगे।
जो कि उसकी अद्भुत आशीषों के विषय में पाया जाता है। उसके पश्चात साक्षी राम, सामर्थ राम, शैलराज राम एक सुंदर समूह गीत को लेकर हमारे मंदिर में आ रहे हैं। तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इन बच्चों के जीवन के लिए, उनके दान वरदानों के लिए, जिसके द्वारा से वे परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। तो परमेश्वर पिता उन्हें अद्भुत रीति से आशीषित करें। आइए बच्चों, हम स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। माय नेम इज शैलराज राम। मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आज से लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आज से लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सामर्थ राम है। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। यीशु ने उसको भगाया है, यीशु ने मुझको बचाया है। यीशु ने उसको भगाया है, यीशु ने मुझको बचाया है। आओ हम मिलकर नाचे गाएं, आओ हम मिलकर स्तुति करें। आओ हम मिलकर नाचे गाएं, आओ हम मिलकर स्तुति करें। वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। थैंक यू। सबको जय मसीह की। हम आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं काला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं काला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। चिपकाने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकाने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएंगे। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं
shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior of love. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now our refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. इन स्तुति महिमा की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं सक्षम राम को, शैलराजा राम को, साक्षी राम को और सामत राम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं जोआना और जोशुआ सेल्वम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ उनकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। प्यारे बच्चों, अब आइए उत्तम मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। आज के वचन के माध्यम से हम उस शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे मध्य में लेकर आ रहे हैं आइवन जॉय। जी हाँ, आइवन जॉय भैया इस उत्तम मार्ग की शिक्षा को हमारे मध्य में रखेंगे और इसके संदर्भ में जो वचन पाया जाता है, प्यारे बच्चों अपनी अपनी बाइबल अपने पास हैंडी रख लीजिए, उन्हें खोल लीजिए और निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 7 आयत से 8 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 7 आयत से 8 आयत तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रहे हैं सक्षम राम। जी हाँ, सक्षम राम हमें इस वचन के पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। सो आइए बच्चों, हम उस उत्तम मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मसीह की हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकाल ले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 7 से लेकर 8 पद तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़े और सुने जाने पर अधिक आशीष दे। आमीन। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। पीबीएस में आप सबका स्वागत है। अभी शुरू में हमने एक बाइबल पाठ पढ़ा, आप लोगों ने ध्यान से सुना या नहीं? ये किसके बारे में है हम बात करेंगे? ये है दुआ में खुदा बाप से कुछ मांगने के बारे में। ओके, अक्सर हम अपने मम्मी पापा से कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सब ज़रूरत पूरी करते हैं। ऐसा ही जब हम खुदा से दुआ में मांगते हैं तो वो हमें देता है। अब देखना ये है
कि हम खुदा से क्या मांगते हैं या हमें क्या मांगना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी भर वो चीज़ काम आए। चलो एक राजा की कहानी देखते हैं जो दुआ में क्या मांगता है और उसे कितना ज़्यादा अपने जीवन में उससे लाभ होता है। ओके, चलिए स्टोरी देखते हैं। सोलोमन, जो राजा डेविड का सुपुत्र था, वो शाही और ईमानदार इंसान था। एक दिन सोलोमन को सपना आया। सोलोमन, अपनी एक ख्वाहिश बताओ, कुछ भी, और मैं उसे पूरा करूंगा। सोलोमन ने बड़े प्यार से ईश्वर से कहा, मुझे पता है कि ईश्वर के लोगों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, इसलिए मैं आपसे इस काम को सही ढंग से कर सकूं, उतनी समझदारी मांगता हूं। मैं तुम्हारी ख्वाहिश से खुश हूं। शुक्रिया ए ईश्वर। तुम चाहते तो सेहत, राजपाट, सैनिक, लंबी आयु या शोहरत मांग सकते थे, पर तुमने समझदारी मांगी ताकि तुम्हें जो काम सौंपा है उसे पूरा कर सको। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी समझदारी दूंगा जो किसी ने ना पहले देखी होगी और ना कभी देख पाएगा। उसी के साथ सेहत, इज्जत और सुरक्षा भी देता हूँ जो तुमने मांगी नहीं है। वादे के अनुसार ईश्वर ने सोलोमन को अनदेखी समझदारी तोहफे में दी। एक दिन सोलोमन को एक ऐसे केस का निर्णय लेना था जो बहुत ही अजीबोगरीब था। दो औरतें सोलोमन के पास आईं, एप्लीकेंट और डिफेंडेंट, और दोनों के पास एक बच्चा था। एक बच्चा मर चुका था और दूसरा जीवित था। ओ महाराज, मैं उस जिंदा बच्चे की माँ हूँ जो इसके हाथों में है। दोनों औरतों ने जिंदा बच्चे की मां होने का दावा किया। जनता जो दरबार में मौजूद थी, वो जानना चाहती थी कि राजा इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ये बात तो मैं जानता हूँ कि एक औरत झूठ बोल रही है, पर वो कौन है? मुझे इस मामले पर बड़ी समझदारी से निर्णय लेना होगा। राजा ने कुछ देर तक सोचा। कोई है यहाँ? मुझे एक तलवार दो। दरबार में सब सोच में पड़ गए। एक सैनिक तलवार लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक हिस्सा दोनों में बांट दो। जनता राजा के इस कठोर फैसले से चकित रह गई। जिस औरत ने दावा किया था, वो अपने बच्चे को कटता नहीं देख सकती थी। ओ मेरे दयालु महाराज, कृपा करके आदेश वापस लीजिए। मैं भी अपना आरोप वापस लेती हूँ। आप फैसला इसके हित में कर सकते हैं, पर मेरे बच्चे के प्राण मत लीजिए। मैं अपने सामने अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे तो राजा का फैसला बहुत पसंद आया। इसे 2 हिस्सों में काट दो। मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ और हुक्म देता हूँ कि बच्चे को पहली औरत को सौंप दिया जाए, क्योंकि वही इसकी माँ है। शुक्रिया महान महाराजा। सोलोमन की समझदारी हर किसी के जो दरबार में मौजूद था समझ में आ गई और उसकी वाहवाही पूरे राज्य में फैलने लगी। ईश्वर ने अपना वादा निभाया। राजा सोलोमन लेजेंड बन गए। उनकी समझदारी की प्रशंसा हर तरफ फैलने लगी। सोचने वाली बात है कि एक इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है। मैं उनके ज्ञान और समझदारी की परीक्षा स्वयं लूंगी। तो रानी शीबा ने अपने आने की सूचना राजा सोलोमन को दी। शिबा की रानी हमसे मिलने हमारे राज्य में आ रही है। हमें उनका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से करना है। शीबा की रानी राजा सोलोमन से मिलने आईं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। ओ महान महाराजा, मैं यहाँ आपके बुद्धि और समझदारी की परीक्षा लेने आई हूँ। मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ।
बोलिए क्या करना है। मेरे पास दोनों हाथों में फूलों का गुलदस्ता है। एक गुलदस्ता बगीचों के ताजे फूलों का है और दूसरा नकली फूलों का है, जिसे एक्सपर्ट्स ने हूबहू असली बनाया है। मैं समझ गया, अब आगे बताइए। अब आपको ये बताना है कि कौन से असली फूल है, जो मेरे दाहिने हाथ में है वो या जो मेरे बाएं हाथ में है वो। राजा सोलोमन ने कुछ देर तक सोचा। ये सवाल तो पेचीदा है, कौन सा वाला असली होगा? मैं तो उलझन में पड़ गया हूँ, अब कैसे पता लगाऊं? उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक किस्सा याद आया। मैंने मक्खियों को फूलों के पास भिनभिनाते हुए देखा है। मक्खियाँ ताजे फूलों के अंदर के शहद की तरफ आकर्षित होती हैं। ये तरकीब तो जरूर काम करेगी। कौन है वहाँ पर? महल की खिड़कियाँ तुरंत खोल दी जाएं। एक नौकर ने खिड़कियां खोली। थोड़ा समय बीता। सबने देखा कि 2 मक्खियां खिड़की के अंदर आ रही थीं। शीबा की रानी सोच में पड़ गई कि राजा आखिर क्या कर रहे हैं। मक्खियां उन फूलों पर जाकर बैठीं जो रानी के बाएं हाथ में थे। जो फूल आपके बाएं हाथ में है वही असली फूल है। बहुत बढ़िया। पर मेरे पास और भी मुश्किल भरे सवाल हैं आपके सामने रखने के लिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो कठिन सवाल पूछती गईं और सोलोमन सब सही जवाब देते गए। मैं आपके समझदारी की दीवानी हो गई हूँ। राजा ने उन्हें तोहफों से नवाजा और वो अपने राज्य लौट गईं। तो ये थे राजा सुलेमान, जिसने खुदा बाप से बुद्धि मांगी और बहुत बड़ा राजा बना। सच में जब हम पढ़ाई करते हैं, अपने काम करते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बुद्धि की। इसलिए जब हम दुआ करें तो हमेशा से खुदा बाप से बुद्धि और समझ मांगे, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, ध्यान रखना इस बात को। ओके, बाय। प्रेज लॉर्ड। हाय, मैं हूँ प्रतीति और मैं हूँ प्रशंसा और आज हम ले चल मुझे गाएंगे।
इस उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए मैं भाई आइवन जॉय भैया को उनके अद्भुत परिश्रम के लिए जो उन्होंने इसे बालकों के बीच में प्रेषित करने के लिए किया, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करे। और इससे संदर्भ जो बाइबल रीडिंग थी जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई सक्षम राम ने की, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, आइए हम इस दिन की, आज के दिन की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी हासिल कर ले। जी हाँ बच्चों, आज बिगिनर कक्षा के बच्चों के लिए, जी हाँ बिगिनर कक्षा के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। आपको किसी भी बिब्लिकल कैरेक्टर पे अपने आप को तैयार करना है। कोई भी बाइबल से संबंधित चरित्र पर आप अपनी तैयारी करके उसे इस व्हाट्सएप ग्रुप समूह में डाल सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको इस आराधना के बाद इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर, ऑनलाइन संडे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जाएगी। कृपया उन सूचनाओं पर आप जरूर से ध्यान दें और उनके अनुसार अपनी तैयारी को करें। उसके पश्चात क्विज कंपटीशन है। क्विज कंपटीशन जो आयोजित किया जा रहा है वो जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर कक्षा के बच्चों के लिए किया जा रहा है। उसकी जानकारी भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी और आप उसके अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे। सो मेरा ये अनुरोध है आपसे कि आज के दिन की जो तैयारी है उसे पूरा करें और उसमें भाग लें। आइए बच्चों, हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं उसके अद्भुत आशीषों के लिए जो पहले, दूसरे और तीसरे दिन इस वेकेशन बाइबल स्कूल पर बनी रही, जो कि मसीह मंदिर चर्च सियना इंदौर के द्वारा से सारे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। मैं नाम बनाम एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को, एक एक महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना योगदान दिया। सारे बालकों के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं, सारे पेरेंट्स के परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। प्यारे बच्चों, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, परंतु इससे पूर्व कि हम आपसे इजाज़त लें, हम एक प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। प्रभु आप सभी को अपनी अद्भुत आशीषों के अंतर्गत बनाए रहे। सारे बच्चों के उत्तम जीवन की कामना के साथ और उनके आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्थान के लिए प्रार्थना करने के द्वारा से, और उस ललक को जो उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को खोजने की है उसके लिए विनती, निवेदन, प्रार्थना करते हुए प्रभु परमेश्वर से मैं आप सभी से रुखसत होता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। फिर मिलेंगे अगले संडे एक बार फिर से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन।